Okay, now I'm starting today's class. Chapter 7, Formula and Function. Today we will see Chapter 7, Formula and Function, page number 92. So this is the chapter Formula and Function. We will discuss each and every topic today, and that is revision class. So I expect you all will answer, but whenever I will ask. So let's start. Microsoft Excel, which is already you have learned. Excel is a powerful spreadsheet program that allows you to organize data, complete calculation, make decision, and develop report. So let's start about spreadsheet program. Everyone know what is spreadsheet program? Whenever we start Microsoft Excel from our computer, as I'm starting Microsoft Excel 2010. That is Microsoft Excel. It's a spreadsheet program. Why it is called spreadsheet program? Because it have a large number of rows and columns. That is A, B, C, D, E, F, G, H up to XFD. Up to XFD. The last column is XFD. Again, I have sent in my instruction. No one will make drawing on screen. So please remove your drawing. Okay, I'm removing. So everyone have seen last number of column is XFD. Last number of column is XFD, which is equivalent to 16,384. Now come to first column. That is A, second column B, third column C, fourth column D, up to 16,384th column is XFD. Okay, now come to the rows. Rows 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 10,48,576. 10,48,576. C, 10,48,576. That is last number of rows. That is last number of rows. That is last number of rows. So have you seen the number of column and number of rows in Excel worksheet? So the complete rows and column is called Excel worksheet. Clear? Any doubt? I hope. No, sir. No, sir. This is called worksheet. No, sir. Okay, this is called worksheet. No, sir. To start Excel worksheet, No. as I started, click on start button. The start menu will appear and all program choose Microsoft Office. Then we have to choose application of Microsoft Office, that is Microsoft Excel 2010, and that is the screen as I open. That is Microsoft Excel screen. Clear? Okay. Now come to the formula and function. Formula and function. Okay, basically there are two types of data we can enter in our Excel sheet. That is constant and formula. Formulas. Whenever we enter Constant and formulas. Constant and formulas are two types of data in Excel. Yes. So whenever we enter anything, that is what? That is direct value. That is Your voice is not direct value. Whenever we enter any data, either in a form of number or in a form of text, that is called direct value. Suppose that I'm going to preparing a result sheet. Clear? I'm going to prepare a result sheet. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Okay, sir. I'm going to prepare a result sheet. Okay, sir. Sheet duty 2. Okay, sir. Clear? And here I'm writing. Okay, sir. Please mute yourself. Otherwise, you will not able to listen me. Meeting. If you will want to ask anything, then you have to mute yourself. Name Yes, sir. of student and English
एक बच्चा Science, social science, computer, Excel, MX Excel. Okay, sir. Okay, okay. Okay, I sir. have told whenever I was taking class, no one will make any phone call. और अभी आप लोगों ने phone call ही शुरू कर दी. Okay, sir. नेट नहीं पकड़ता तू. इसमें बैठा बैठा सब लोग छोटे जाएंगे तो, लेकिन ये मन खोजता है बैठा ही दे तो कह रहा है एक बात को हम रहने लगेंगे तो 2 महीना रहेंगे, उसके बाद हमको जरूरत होगा तो हम अपने खर्चे से बैठा सकते हैं, फिर जाके आपको फिर रहने के बाद 1 महीने के बाद Okay, class 4. This is your actual worksheet. Please don't make any drawing. This is your actual worksheet, and here I'm just entering your roll numbers 2, and after that I drag that number 2. And here I'm writing फोन पे रखी हो क्या? फोन पे हटा दो. फोन पे डिलीट कर दो मुझे 2 शादी एक आर्मी स्कूल में रिवीजन का होने why you are not making noise and you are making you are talking whenever you have unmuted yourself, and so many times I have told don't make drawing, still you are making drawing. पानी का जो भी आएगा So these are the names, and I'm entering marks out of 40. इनसे तो ठीक है लोग आ रहे थे Why don't have you mute yourself? Otherwise I will mute out. Really, I have to do that task. Okay, this is the value. Okay, that is your result sheet. Once you will created your result sheet, I just entering the data. अरे हेलो Okay, now no one will make noise. Okay, now I'm going to total. So whatever I have entered, that is called direct value, constant value.
Now I'm going to take formula, that is formula equal to sum bracket, that is the range C4 to H4, and that is bracket closed. And that is the total value. Clear? So student, I hope you all will know what is Microsoft Excel now. Now I'm closing the group, and you have to ask your doubt.
I hope you all have listed your doubt. So let's start asking your doubts. बच्चों आपका जो भी डाउट है, let's start asking formula and function. I hope you understand what is formula, what is constant and what is formula. I hope you understand. Okay. Now you can unmute yourself and ask your doubts. What is constant and what is formula? Have you understand? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Tell me what is constant. और ये कौन है बेटा, क्यों ड्राइंग करने में ही बिजी है? ये क्लास पूरी रिकॉर्ड भी हो रही है, उसका नाम भी आप पे आ रहा है, जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं कितने लोग। तोड़े थे हम लोग ने। चल अभी बच्चे हैं। जब मैं अनम्यूट कर रहा हूं आप लोग को, तो आप लोग इधर उधर की बात शुरू कर दे रहे हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट शीट। ओके सर। एंड यू हैव टू टेक ओके सर। व्हाट इज कांस्टेंट? Abhijit Raj. I am going to note down your name, Abhijit Raj. Okay. The value which directly Write is your the name. cell. value Okay, I have opened Microsoft Excel sheet. What is constant? Abhijit Raj, I am going to note down your name. After warning, if you are still making drawing, Utkarsh Shukla, Abhijit Raj and Utkarsh Shukla. Very good. Shubham Singh. Shubham Singh. तनु शर्मा। आज बेटा मैं क्लास में करूंगा जितने लोग ड्राइंग किए हैं। Sir, I have a doubt. Ask your doubt. Sir, how we can apply auto sum function in MS Excel? अभी तो मैंने बताया, मैंने जब टोटल किया था यहाँ पे, तो किसका नाम गायब? जब मैंने Sir, your voice is not clear. कैसे आएगा बेटा जब? Yes, sir, your voice is not clear. अभी आएगा। सर ओके, अब आ रहा है ना आवाज? अब मेरी आवाज आएगी क्योंकि मैंने सबको म्यूट कर रखा हुआ है। ओके, मैंने बताया था आपको, इफ यू हैव वैल्यूज, सम वैल्यूज, ऐसे वैल्यूज अगर आपने कुछ एंटर कर रखा है, ओके, सम वैल्यूज यू हैव, और कुछ भी आप लिखते हैं यहाँ पे 1 2 1 2, और आपको इसे ड्रैग करना है, एंड यू जस्ट ड्रैग इट, देन इट मींस इट्स ऑटोमेटिक इंक्रीज्ड वैल्यू। वैल्यू क्या हो रही है? ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रही है। ये वैल्यू क्या हो रही है? ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रही है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? This is called autofill feature. This is called autofill feature. This is called autofill feature. Understand? Autofill feature. Now अब मैं फिर से आपको अनम्यूट करने जा रहा हूं और फिर आप अपने डाउट्स पूछेंगे। ये शुभम सिंह मैंने नाम नोट कर लिया बेटा, अब आप ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है। अब फिर अभी मैं क्लास ओवर होता है तो फिर आपको फोन करता हूँ, अभी रुक जाइए। Okay, ask next doubt.
Ask your next doubt. Function. Sequence of functions. What is cell reference? Sir, how to Sir, total your the voice was very sir, clear. your voice is not Okay, what is cell reference? I'm going to tell you what is cell reference. ऐसे मैं पूछूंगा तो आप एक साथ अनम्यूट हो जाओगे सभी लोग, मैं बताऊंगा तो भी आपको मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, तो इसीलिए मैं सबको मैंने म्यूट। Okay, so that is called cell reference. Okay, understand, that is called cell reference. अब मैं कहीं भी क्लिक करूंगा और आपको सेल रेफरेंस बताना है, और मैं अनम्यूट करने जा रहा हूं, प्लीज आप लोग शोर नहीं करेंगे अनम्यूट करने के साथ ही। पार्टिसिपेंट, मैं आपको वापस अनम्यूट करने जा रहा हूँ, प्लीज आप लोग शोर नहीं करेंगे, केवल आप लोग अपने प्रॉब्लम पूछेंगे, जिनको प्रॉब्लम नहीं पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट ही रखेंगे, अपने आप को म्यूट रखेंगे और बाकी लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, अब पूछिए आप। sir, I have an What is function? मैंने What बताया is function? रेफरेंस आपको बताना पड़ता है। रेफरेंस फंक्शन क्या है, मैं यहाँ सम करने जा रहा हूँ तो लिख रहा हूँ इक्वल टू सम, तो ये सम क्या है, फंक्शन है। क्या है सम? Function. क्या है ये फंक्शन, कैसे आया ये सम फंक्शन, क्या है, किससे आया ये सम फंक्शन है? अनम्यूट करके अपने आप को नॉइज में क्यों डाल रहे हैं बच्चों? Sir, your voice is not clear. Yes, sir. Sir, your voice is not clear. sir, your voice is हाँ, तो clear अभी आएगा, अभी आएगा clear। Sir, what is tolerance? अब मेरी आवाज आ रही होगी, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ये मेरा एक्सेल वर्कशीट है, इस पे मैं जहां भी क्लिक करूंगा वहां पे क्या होगा, उस सेल का एड्रेस आएगा, जैसे यहाँ पे कॉलम ओ है और रो 4 है, तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया, O4, कहा नेम बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज O4, दैट डिस्प्ले इन नेम बॉक्स, सो दैट इज व्हाट, दैट इज सेल रेफरेंस, दैट इज सेल रेफरेंस। तो आप सभी लोग स्क्रीन पर ड्राइंग बना के लिखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं, स्क्रीन पर ड्राइंग बना के लिखेंगे सेल रेफरेंस, ठीक है। चलिए मैं वापस शेयर करता हूं अपना स्क्रीन, और सभी लोग ड्राइंग बना के लिखेंगे कि मैं जिस सेल पे क्लिक करता हूं उस सेल का एड्रेस बताएंगे। चलिए मैंने क्लिक कर दिया इस पे, अपना नाम और ड्राइंग नहीं बनाना है, उस सेल का एड्रेस लिखना है, सेल का एड्रेस लिखना है, 7 के नहीं K7 है, यस K7, क्या है K7, यस वेरी गुड K7। चलिए अब अगला पूछते हैं, हाँ हो गया बेटा, हो गया ड्राइंग हटाइए सभी लोग। अब नेक्स्ट का सर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए अब बताइए K7 हो चुका है, अब बताइए, यस वेरी गुड D12, यस वेरी गुड D12, यस नेक्स्ट। अब बताइए
अब बताइए, बताइए। यस, O6, वेरी गुड, O6। चलिए अब बताइए, D6। इट मीन्स अब हो गया, आप कोई ड्राइंग नहीं बनाएगा, मैंने समझ लिया, सबको आता है, सब लोग समझ गए हैं। वेरी गुड, सब लोग को समझ में आ गया है, सब लोग को समझ में आ गया है, ड्राइंग नहीं बनाना है अब, अदरवाइज मैं ड्राइंग से भी आपको अभी हटा दूंगा। अभी आपको ड्राइंग बनाने के लिए अलाउ किया है मैंने, अभी ड्राइंग से भी मैं आपको हटा दूंगा, तो फिर ड्राइंग भी नहीं बना पाएंगे। क्लियर? हो गया बेटा, ड्राइंग हो गया ना। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ, फॉर्मूला एंड फंक्शन। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन अगर हम करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला, और कोई अगर हम कीवर्ड यूज करते हैं, जैसे सम, मैंने सम कीवर्ड यूज किया, दैट इज फंक्शन। क्लियर? सेल रेफरेंस, अभी मैंने बताया सेल रेफरेंस। रेंज क्या होता है? सेल रेंज, आपको सेल रेंज बताना है। अब मैं एक्सेल शीट पे जाता हूं और रेंज का सिलेक्शन करता हूं, आपको सेल रेंज बताना है। चलिए सेल रेंज बताइए, लिख के बताएंगे, ड्राइंग से बताएंगे लिख के, टेक्स्ट बॉक्स यूज करके बताएंगे। देयर इज अ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, आप टेक्स्ट बॉक्स लिख के बता सकते हैं सेल रेंज। मैं फिर से बताता हूं आपको, फिर से मैं सेल रेंज बनाने जा रहा हूं। सेल रेंज बताइए, सेल रेंज, सेल रेंज बताइए। C5 से लेकर J5, C5 से लेकर J5, क्या है? C5 से लेकर J5, C5 से लेकर J5। होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, हो गया, हो गया, सबका हो गया। C5 से लेकर J5, C5 से लेकर J5, C5 से लेकर J5, C5 से लेकर J5। नेक्स्ट, अब बताइए, अब बताइए आप लोग, अब बताइए, हाँ बताइए क्या होगा? K2 से लेकर, K2 से लेकर, ऐसे समझ में आएगा? ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में आएगा बच्चों। लगता है ड्राइंग से भी आपको मुझे हटाना ही होगा। चलिए वेट करिए, 2 मिनट बाद आप ड्राइंग भी नहीं बना पाएंगे, अब कोई ड्राइंग भी नहीं बना पाएगा। अब कोई ड्राइंग बना भी नहीं पाएगा। अब बना के दिखाइए ड्राइंग, अब आप ड्राइंग भी नहीं बना पाएंगे। तो प्लीज आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? यहाँ पे क्या हो जाएगा? K2 से लेकर L10, K2 to L10, ये हो जाएगा K2 to L10, K2 to L10, that is your cell range, that is your cell range, K2 to L10. Operator, what is operator? Three types of, there are 2 types of operator, arithmetic and comparison operator. What is arithmetic operator? जितने भी हम arithmetical symbol यूज करते हैं, that is arithmetic operator. चलिए लेते हैं, चलिए अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? सम करना है। तो 45 इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट करता है, 45 प्लस 23 दैट इज 68, 68 व्हाट? दैट इज प्लस ऑपरेटर यूज, वी हैव प्लस ऑपरेटर। क्या यूज किया मैंने? प्लस ऑपरेटर यूज किया है। कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? प्लस ऑपरेटर यूज किया है। कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? प्लस ऑपरेटर, दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। माइनस यूज करते हैं 22, वैल्यू हैव बीन चेंज्ड, क्लियर? स्टार यूज करते हैं, स्टार यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन, स्टार यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन, क्लियर? स्टार यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन। एंड डिवीजन, डिवीजन, दैट इज डिवीजन, दैट इज डिवीजन, दैट इज डिवीजन। देन पावर फंक्शन, पावर फंक्शन इक्वल टू 2 एंड कीबोर्ड में 6 के ऊपर है पावर फंक्शन, 4 दैट विल बी 16, मीन्स इट मीन्स 2 into 2 into 2 into 2,
4 times, it means 4 times you have to write 4 times you have to write 2 into 2 into 2 into 2. It means 2 to the power 2. It means 2 to the power 2. So that is arithmetic operator. And equal to 4, 5 greater than 7. 5 7 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये छोटा होगा ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो ये क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है। इसी तरह इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 5, अब क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि 7 5 से बड़ा है तो ट्रू आएगा, और क्या छोटा होगा तो फॉल्स आएगा। तो ये क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है। क्या है? इट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। इट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। एनी डाउट स्टूडेंट? इट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। डाउट आप कैसे बताएंगे? अगर अभी मैंने आप लोग को अनम्यूट कर दिया तो आप एक ही साथ चिल्लाना शुरू करेंगे। एनोटेशन मैंने दे दिया तो मेरे स्क्रीन को आप कलर कर देंगे, आंसर आप लोग बताएंगे नहीं, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। क्लियर? तो क्लास स्टूडेंट्स, अब मैं आपको लास्ट चांस दे रहा हूं। आपको सबको मैं अनम्यूट कर, अपने आप से आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिना शोर किए, और देखेंगे अगर एक पूछ रहा है तो आप चुप बैठेंगे। पूछिए, कोई डाउट? फिर नहीं पूछना आपको तो फिर ऐसे शोर करना पड़ता हूँ। फिर आप लोग चलिए, मैं फिर से आप लोग को मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि आप लोग पूछ नहीं रहे हैं और केवल आप लोग शोर कर रहे हैं। अब आपको एरर्स बताते हैं। ये हैश एरर कब आता है? जब आपकी वैल्यू बड़ी वैल्यू हो जाती है। एक्सेल में वापस आते हैं। अब यहाँ पे मैंने 45 8 पावर 485 कर दिया, और ये इक्वल टू मैंने कर दिया, इक्वल टू कर दिया। ये क्या वैल्यू आ रही है? हैश नम। ये क्या वैल्यू है? हैश नम। हैश नम देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब है हैश नम का मतलब न्यूमेरिकल एरर, दैट इज न्यूमेरिकल एरर। जब ये हैश कब आएगा? जब हमारे पास कोई नंबर हो और यहाँ पर भी कोई नंबर ऐसे हो, और यहाँ पे भी कोई नंबर ऐसे ही हो, और हमारा विड्थ, हमारा कॉलम का विड्थ कम होता है, कॉलम का विड्थ कम हो। ठीक है? चलिए, इक्वल टू 25876 into 258962, that is general, that is number। ये क्या आ रहा है? हैश। ये क्या है? एरर आ रहा है। ये कैसा एरर है? जब कॉलम की विड्थ कम होती है। अब ये कॉलम की विड्थ मैंने चौड़ी कर दी, अपने आप पे एरर हट गया। तो एरर क्यों आएगा? क्योंकि कॉलम की विड्थ चौड़ी नहीं है, दैट इज हैश dy/0। अगर किसी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो ये एरर आएगा। चलिए दिखाते हैं। इक्वल टू 457 डिवाइडेड बाय 0। देखिए हैश div/0, ये क्यों आएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है। क्लियर? डिनोमिनेटर इज 0। हैश नेम, अगर मान लीजिए आपने सम किया है और कहीं से आपने गलत ले लिया, कहीं से आपने कुछ गलत ले लिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एरर आ जाएगा। लेट्स सी, चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। चलिए, मैं यहाँ सम करने जा रहा हूँ, इसका और इसी में H5 कर लेते हैं। थैंक यू। किसका है? ठीक, मैं यहाँ पे HF कर दिया, तो क्या हो जाएगा? हैश वैल्यू क्या आएगा? हैश वैल्यू। क्या गलती है इसमें? मैंने इसमें HF ले दिया था, तो यहाँ पे
कोई ना कोई आपका सेल एड्रेस होगा। तो सेल एड्रेस क्या होगा, H5 होना चाहिए था और मैं गलती से HF ले लिया था। यहाँ पे H5 होना चाहिए था, यहाँ पे कॉमा हो गया, ये भी प्लस होगा। आगे आपका टोटल, तो गलती क्या थी, कोई भी आपने HF टाइप का कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए सेल रेफरेंस REF क्यों आएगा, अगर रेफरेंस नहीं मिलेगा, जैसे A1 A2 और A3 को ऐड किया गया और A1 में कुछ मर्ज है ऑलरेडी, तो वो ऐड नहीं होगा। जैसे मैंने इसको मर्ज कर दिया, G5 और GH मैंने मर्ज कर दिया, क्या किया मैंने, मर्ज कर दिया। लेट्स सी, मैंने इसको मर्ज कर दिया, अब मैं इसे ऐड करने जा रहा हूं, H5 H6 G5, ये G5 और H5 दोनों का एड्रेस होल्ड करेगा। अगर इसको रेफरेंस नहीं मिलेगा, REF एरर आएगा। क्लियर? रेफरेंस एरर का मतलब इसके पहले डेटा है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया अमित रख दिया, तो ये हैश वैल्यू क्यों आएगा, कहीं एक टेक्स्ट है और दूसरा नंबर है, तो ये एरर्स होते हैं। ठीक है, जो आपको पढ़ना था। देन फार्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, जैसे मैंने बताया इक्वल टू लिखते हैं और